Hello everyone, welcome to UPSC Digital Library. Welcome to the comprehensive course on Modern Indian History. Modern Indian History के comprehensive course में आप सभी का स्वागत है. This is the introduction class of this course. ये introduction class है इस course की. So this is not basically what would be asked in your UPSC examination. हम इस वीडियो में वो पढ़ने ही नहीं वाले हैं जो यूपीएससी में पूछा जाएगा. बट विदाउट वॉचिंग दिस वीडियो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अटेम्प्ट द यूपीएससी पेपर. बिना इस वीडियो को देखे ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा यूपीएससी के पेपर को देना. बिकॉज इन दिस वीडियो आई वुड बी टेलिंग यू व्हाई टू स्टडी दिस सब्जेक्ट. आई विल टेल यू what to study in this subject and I will also tell you how to study this subject. इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ना चाहिए. फिर मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए और फिर मैं यह भी बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए. And I am sure after watching this video you guys would be pretty clear about how to go ahead with this subject. This is something about me. I am Abhijit Singh Arora. I am the founder of UPSC Digital Library and Breaking Iron Fitness. I myself have cracked these exams and this is something about me which you guys can read. So let's proceed now and let's come to the most important concept of it. Okay, before that, let me make it very very clear. मुझे इस बात को अभी ही बहुत क्लियर कर देना चाहिए that I would be teaching both in English and Hindi. मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही पढ़ाऊंगा. So that means whatever I would be teaching you on these slides would be explained both in English as well as in Hindi. जो कुछ भी इस पीपीटी में आपके सामने आएगा, आपके समक्ष आएगा, वो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाऊंगा. एट टाइम्स इट में हैपन, बीच बीच में ऐसा हो सकता है दैट आई एम सेइंग समथिंग इन इंग्लिश एंड दोज स्टूडेंट्स हु डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश में गेट कंफ्यूज्ड. बीच बीच में ऐसा हो सकता है कि कुछ बात मैं अंग्रेजी में बताऊं और जिन बच्चों को अंग्रेजी नहीं समझ में आती है वो कंफ्यूज होने शुरू हो जाएं. At the same time, it might also happen that I try to explain something in Hindi and students who do not understand Hindi, who understand English, may start getting confused. बीच बीच में ऐसा भी हो सकता है कि कई बच्चे जिनको हिंदी नहीं आती है और अंग्रेजी आती है, जब मैं हिंदी में बताऊं तो वो कंफ्यूज हो जाएं. प्लीज डू नॉट वरी because whatever will come in front of your screen, जो कुछ भी आपकी स्क्रीन के सामने आएगा, I will explain both in English as well as in Hindi. मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करूंगा. So whatever I am saying in English, if you don't understand English, please have patience. अगर आप लोगों को कुछ मैं हिंदी में बता रहा हूं और आप लोगों को अंग्रेजी की भाषा नहीं समझ में आ रही है, प्लीज हैव पेशेंस. सब्र रखें, धीरज रखें. आपकी भाषा में जब मैं बताऊंगा मैं उसी चीज को दोबारा दोहरा रहा हूं. So what I mean to say is I would be repeating the same thing both in English and Hindi. So if you don't understand what I'm saying, it does not matter because I would be saying the same thing in your language also. I think I have made this point very very clear at the beginning of this course. Now this is our website. Lot of students do not know that we also have a website. बहुत सारे बच्चों को तो ये मालूम ही नहीं है कि हमारे पास एक वेबसाइट भी है, www.upscdigitallibrary.com. So over here, whenever I would upload the PPT or whenever any course is finished, the PDF of that PPT would be uploaded on this website. Apart from that, in the future, I would also be uploading some test series. I would also be uploading some content, frequently asked questions that would be beneficial for all of you. बहुत सारे बच्चों को मालूम ही नहीं कि हमारे पास एक वेबसाइट है. जो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पीपीटी की पीडीएफ भी
कोर्स कंप्लीट होने पर इस वेबसाइट पर ना सिर्फ अपलोड होगी, इसके अलावा मैं कुछ टेस्ट सीरीज, कुछ कंटेंट, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो सब भी मैं वेबसाइट पर अपलोड करूंगा. सो द की इज कीप चेकिंग दी वेबसाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम. आई वुड रेकमेंड दिन में एक बार, जैसे आप लोग upsc.government.in की वेबसाइट चेक करते हैं, इस वेबसाइट को भी दिन में एक बार आप चेक कर सकते हैं. इट विल हार्डली टेक 6 to 7 seconds. इट डज नॉट इट वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम. आपका ज्यादा समय नहीं, मात्र हर दिन के 6-7 सेकंड का ही समय लगेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज माय इंस्टाग्राम पेज. इंस्टाग्राम इज अ social networking platform. All right, this is my Instagram page, and my ID is not UPSC Digital Library. My ID is, this is my personal account, अभिजीत सिंह अरोरा. अगर आप लोग चाहें तो मुझे इसमें ऐड कर सकते हैं. If you guys want, you guys can add me up on my Instagram account. I will accept your request. And at times it may happen that you guys will have doubts related to your preparations, and due to some reason you guys are not able to ask in the YouTube comment section. कई बार ऐसा होगा कि आपके मन में कुछ दुविधाएं होंगी, कुछ सवाल होंगे, कुछ डाउट होंगे, जिनके सवाल आप YouTube के कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ पा रहे हैं, तो आप मुझे यहाँ पूछ सकते हैं, मुझे आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं. Now for those of the students who are unable to search me on Instagram, आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वेल देयर इज ओनली वन रीजन, यू आर डिबार्ड. आप डिबार हो चुके हैं, या आप लोग ब्लॉक किए जा चुके हैं इंस्टाग्राम पे. आप लोगों ने या तो कुछ ऐसे अपशब्द का प्रयोग किया होगा, या ऐसी कुछ भाषा का प्रयोग किया होगा. यू गाइज माइट हैव यूज सम लैंग्वेज और अब्यूजिव लैंग्वेज which might not have been professional. So you guys won't be able to ask me questions on Instagram. In case if you feel that you have done a mistake, अगर आपको लगता है आपसे कोई गलती हो गई है due to immaturity, miscommunication, misunderstanding, please send me an email on UPSC Digital Library @gmail.com. आप मुझे इस पर अपना जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, and if that justification is valid, I will unblock you on Instagram. Hope that makes sense to all of you. As far as this Facebook page is concerned, so UPSC Digital Library is the Facebook page. Over here also you guys can stay connected to me. Here I would be updating about the upcoming videos, about the upcoming updates, or any other content that would be relevant to your preparation. I hope यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई है. Now let's come to the core context of this video. Crux की बात करते हैं इस वीडियो की. First question which might be arising in your mind is, why should we study modern Indian history? फिर आपके मन में ये भी चल रहा होगा, अच्छा ठीक है, हमें ये समझ में आ गया है, we have understood why we should study this subject. हमें पता चल गया है ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है. Now what is the syllabus for UPSC Civil Services examination? इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है? क्योंकि मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, तो क्या मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की किताब उठाऊं, ग्रेजुएशन की किताब उठाऊं, या मैं इसमें पीएचडी कर दूं? ऑब्वियसली आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी. यू विल हैव टू सेट योर लिमिट्स, हाउ मच हैज टू बी स्टडीड and how much has to be discarded. So we'll have a quick look about the syllabus of this subject also. After that, obviously the frequently asked question, though I don't find it much relevant, but still I know this is the most important concept that you guys are looking for. What is the book list? सर पढ़ना किससे, ये बताओ. हमें ये मत बताओ कि क्यों पढ़ना है, हमें ये मत बताओ कि यूपीएससी क्यों क्लियर करना है, हमें ये भी नहीं पता कि यूपीएससी क्यों क्लियर करना है, हमें तो ये बताओ क्या पढ़ना है और पास कैसे करना है. Though that does not make sense, but still we'll be looking at the book list also. हम book list की ओर भी थोड़ी सी नजर डालेंगे. And in the end, I will also tell you how to effectively use this video series and what should be the approach to study this subject. ये जो वीडियो सीरीज मैं बना रहा हूं, हजारों वीडियोस भरे हुए हैं यूट्यूब के ऊपर मॉडर्न हिस्ट्री के, तो इस वीडियो सीरीज को कैसे यूज किया जा सकता है, how you guys can make the best use of this video series, and at the same time when you as an aspirant are preparing for this examination, what should be your approach towards this subject. आपकी approach क्या होनी चाहिए. So I think if we look at these questions, I think that will make sense as to what is the relevance of this introduction class. So one by one, let's begin now. Quickly let's look at why we should study modern Indian history.
फर्स्ट थिंग इज, अगर आप अपने आज को समझना चाहते हो, इफ यू गाइज वांट टू अंडरस्टैंड योर प्रेजेंट, यू मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर पास्ट। सर क्या बकवास बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हो आप? सर व्हाट इररिलेवेंट आर यू टॉकिंग अबाउट? आई विल गिव यू एन एग्जांपल। व्हाट इज रिटन हियर ऑन द सब्जेक्ट लाइन? ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, वट एवर यू गाइज आर सीइंग हियर, व्हाट इज रिटन? WHY, why should we study modern Indian history? You tell me guys, if I pick up any illiterate person, मैं किसी अनपढ़ इंसान को बुलाकर बोलूं इसको पढ़ो, क्या वो पढ़ पाएगा? The answer is no. आप पढ़ पा रहे हो, क्यों पढ़ पा रहे हो? क्योंकि आपके पास एक पास्ट है। आपने ये सब चीजें, अल्फाबेट्स को अरेंज करके वर्ड्स बनाना, वर्ड्स को अरेंज करके सेंटेंस बनाना, सेंटेंस को पढ़कर कॉम्प्रीहेंड करना, उसको समझना, उसको बोलना, उसको लिखना, ये आप पढ़ चुके हो। You guys have already studied how to read alphabets, how to arrange the alphabets and make words, how to arrange the words and make sentences, how to read those sentences or how to comprehend those sentences, how to understand those sentences, how to speak that language, and how to write in that language. So what I'm saying is, whatever you are today is because of your past. And if you want to understand what is going on right now, it becomes very, very relevant to understand the past. I hope this makes sense to all of you. Now, at the same time, it is very, very important that if you want to look at this world, अगर आप इस दुनिया को देखना चाहते हैं, what is happening, why it is happening, how it is happening, well, at times the answer to these questions lies in the past, in the history. कई सवालों के जवाब हमको अतीत में, भूगोल में, हमारे बीते हुए काल में हमें मिलते हैं. We get many answers to the question in the past. So it becomes very, very important to read, to understand about what has happened in our past. Now it is very, very true. I can personally relate to this. मैं इससे personally अपने आप को relate कर पाता हूँ. History repeats itself. इतिहास अपने आप को दोहराती है. And if you are thinking about bringing about a revolution, अगर आप इस दुनिया को बदलना चाहते हो, believe me guys, if you do not know कि हमने क्या अच्छे काम किए हैं, हमारी क्या गलतियां थी, if you do not know what good things we have done, what failures we have encountered in the past, believe me guys, there are very high chances, there's a very high possibility, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप उन गलतियों को दोहरा देंगे. अगर हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारा मकसद यही है कि हम पिछली पीढ़ी से बेहतर बनते जाएं. वी बिकम बेटर एंड बेटर फ्रॉम द प्रीवियस generation. So if that is the case, you must learn from your failures. You must try not to repeat them, and you must try to create a new history. I hope this makes sense to all of you. At the same time, the 3 points that I told you, ये जो 3 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए, ये तो एक जनरल हिस्ट्री के हो गए. सर ये आप हमको ये मत बताइए, एंशियंट हिस्ट्री में भी आप यही बात करते थे, मेडिवल हिस्ट्री में भी यही बात करते थे. सर यू स्पोक अबाउट द सेम थिंग इन एंशियंट हिस्ट्री, यू स्पोक अबाउट द सेम थिंग इन मेडिवल हिस्ट्री, बट देन व्हाई वी शुड स्टडी मॉडर्न हिस्ट्री? इट्स बिकॉज टुडे वी आर एन इंडिपेंडेंट नेशन, वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन, वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. But do you know guys, there's a lot of blood, sweat and hard work involved in it. बहुत खून पसीना और मेहनत लगा इसके पीछे. तो आपको नहीं लगता है कि वो इंसान जो इसके पीछे लगे हुए थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया कि आज आप लोग यहाँ बैठ के यूपीएससी की तैयारी कर पाओ, आज मैं यहाँ बैठकर इस डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको यूपीएससी की तैयारी करवा पाऊं, इसकी आजादी हमें मिल पाए, वो आजादी जिन लोगों ने हमें दिलवाई, आपको नहीं लगता है कि आपको उनके बारे में पढ़ना चाहिए? क्यों पढ़ना चाहिए? Why we should study about them? Because if we'll understand their perspective, if we'll understand their vision, अगर हमें उनका पर्सपेक्टिव, उनके विजन, उनकी सोच समझ में आ जाएगी, maybe don't consider them as your idol, आप उनको अपना भगवान मत मानिए, but maybe 0.1% you guys might get something to learn from them, and you guys might be able to implement them in your own life.
आई होप दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू। अब मुझे मालूम है कुछ लोग वहां बैठकर बोल रहे होंगे, सर मेरे दादा ने भी आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उनको तो हम इतिहास में नहीं पढ़ते हैं। सर मेरे जो दादी थी वो भी सड़कों पर उतरी थी, उन्होंने भी नौकरी त्याग दी थी, उन्होंने भी घर बार छोड़ दिया था, उनको तो हम इतिहास में नहीं पढ़ते हैं। महात्मा गांधी को ही पढ़ते हैं, भगत सिंह को ही पढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस को ही पढ़ते हैं। सिर्फ कुछ लोगों को ही पढ़ने की क्या जरूरत है, सबको पढ़ना चाहिए ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स क्वाइट ऑब्वियस वी कैन नॉट स्टडी एवरीबडी। हम कुछ लोगों को ही क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो जो कुछ लोगों की जो आइडियोलॉजी है, द आइडियोलॉजी ऑफ दोज पीपल, इट इज नॉट ऑफ दोज पीपल अलोन। वो उन कुछ लोगों की आइडियोलॉजी नहीं है। नाउ लेट्स से इफ आई से महात्मा गांधी, दैट आइडियोलॉजी माइट बी योर्स आल्सो, वो आपकी भी आइडियोलॉजी हो सकती है। सो महात्मा गांधी इज नॉट रिप्रेजेंटिंग महात्मा गांधी, मे बी महात्मा गांधी इज रिप्रेजेंटिंग योर ग्रैंडफादर आल्सो। मेरी बात आप समझ रहे हो? जब हम एग्जाम्पल देते हैं तो हम पूरा का पूरा थ्योरी दोबारा नहीं लिखते हैं, हम कुछ उदाहरण देने की कोशिश करते हैं जो उस सारी बातों का सार हो। इट शुड बी अ समरी ऑफ वॉट एवर वी हैव एक्सप्लेन्ड और वॉट एवर वी हैव स्टडीड। तो हम जो इन रेवोल्यूशनरी लीडर्स, ये फ्रीडम फाइटर्स या इन सब की बात कर रहे हैं, वी आर जस्ट टेकिंग द डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी। अगर अंडरस्टैंड दिस, इफ भगत सिंह would had the same ideology like Mahatma Gandhi, we would have not studied Bhagat Singh. Or in other words, we would have not studied Mahatma Gandhi, we would have just studied Bhagat Singh. But we study both of them. We read about both of them because both of them had different ideologies. शायद अब आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। So this brings me to this quote. आप सब लोगों ने ये सुना भी होगा, सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनिज्म, एवरीबडी, all the religious people of this country, everybody have equal contribution to this nation and everybody have equal significance to the independence of this nation. I know at the present moment what we are living right now, different political parties are making use of this social media to spread their propaganda through the IT cell. But I am expecting that all of you are intelligent people. And this brings me to one more reason why you should study modern Indian history. अगर आप लोगों को इतिहास पता है तो आप लोगों को कोई गुमराह नहीं कर सकता है. If you know what is the history of this nation, nobody can distract you or nobody can bring about a hazy picture in front of you. जब आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे देश में इन फ्रीडम फाइटर्स का क्या रोल है, कोई आकर आपको बोलेगा कि गांधी बेवकूफ है, भगत सिंह बेवकूफ है, you know what is the reality. There are many people who are trying to change the history of this country. कई लोग इस देश का इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं. You know why? Because they themselves don't have a history and they themselves don't have anything to tell you. उनके पास खुद का कोई इतिहास नहीं है. But when you will study this history, this all will make sense to all of you. मुझे मालूम है इस वीडियो के बाद आप लोग मुझे गाली भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, बट प्लीज वॉच दिस कोर्स कंप्लीटली, प्लीज डू एज डायरेक्टेड. आप आना, मैं बैठूंगा, दोनों बैठेंगे, हम इस बारे में बात करेंगे आमने सामने. ऑल राइट, what is the syllabus of this UPSC civil services examination? So see, the UPSC is very intelligent. ये जो UPSC का कमीशन है ना, वो बहुत समझदार है. उसको मालूम है कि अगर उसने 1857 के रिवॉल्ट को लिखना भूल गए और गलती से उसका सवाल आ गया, आप लोग जो है ना, आप लोग UPSC के सामने स्ट्राइक खड़ी कर देंगे. UPSC is very intelligent about it. It's not like other state PSC examination. उसको मालूम है ये बात. So that is why, you know what is the syllabus of UPSC prelims? History of India and Indian national movement. अब इसका मतलब क्या हुआ? हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो पूरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गई, इंडियन नेशनल मूवमेंट तो पूरा फ्रीडम स्ट्रगल हो गया. दैट्स इट. यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग अबाउट इट. एवरीथिंग सर, सब कुछ पढ़ना है? नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी, कॉन्सेप्ट, स्टोरी एंड कॉन्टेक्स्ट अबाउट एवरीथिंग. आई पर्सनली डू नॉट रिकमेंड दैट यू स्टार्ट मगिंग अप फैक्ट्स. समय के साथ अगर आपके रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, इफ योर रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, यू विल स्टार्ट रिटेनिंग दोज थिंग्स. दिस इज द सिलेबस of UPSC मेंस एग्जामिनेशन. लुक एट दिस वेरी वेरी केयरफुली. बहुत ध्यान से देखिए आप लोग. इंडियन कल्चर विल कवर दी सैलियन एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म. आर्ट की बात हो रही है, लिटरेचर की बात हो रही है,
आर्किटेक्चर की बात हो रही, एंशियंट से मॉडर्न टाइम। नाउ इफ आई वुड हैव नॉट मेंशन दिस, अगर मैंने ये मेंशन नहीं किया होता, तो आपको लगता है आर्ट एंड कल्चर तो सिर्फ एंशियंट और मेडिवियल पीरियड में ही पढ़ना है। फोर्ट विलियम कहाँ है? कोलकाता में है। हमको फोर्ट विलियम के बारे में क्यों पढ़ना है? फोर्ट विलियम क्यों बना? उसका सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कहां बना? उसकी वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है? मुंबई चेन्नई क्यों नहीं? आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। और ये सारे टॉपिक जो है ना, ये आर्ट एंड कल्चर के लिए। देयर इज नो सच सेपरेट सब्जेक्ट एज आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर जैसा कोई अलग सब्जेक्ट नहीं होता है। इट जस्ट दैट art and culture questions are being asked little bit more in the UPSC examination. So the coaching academy is just to make profit बनाने के लिए उन्होंने बोला आर्ट एंड कल्चर हम अलग से पढ़ाएंगे। बट बिलीव मी गाइस, इफ यू स्टडी हिस्ट्री कंप्लीटली, हिस्ट्री को आप कंप्लीटली पढ़ें, आर्ट एंड कल्चर ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। होप दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इट बिगिंस फ्रॉम द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। ऑल राइट, इसमें हम लोग अलग अलग इवेंट्स भी देखेंगे, अलग अलग पर्सनैलिटीज जिनका योगदान रहा है, अलग अलग इश्यूज, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। एंड व्हेन वील टॉक अबाउट द फ्रीडम स्ट्रगल, वील अंडरस्टैंड फ्रीडम स्ट्रगल हैज नॉट कम इन वन डे। एक दिन में हमें आजादी नहीं मिली है। 15 अगस्त को बहुत मजा आता है झंडा लेके घूमने में, लेकिन वो एक दिन की बात नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत लगी है। उसके अलग अलग स्टेजेस, हमारे फेलियर्स, उन सब पर हम देखेंगे। उनके पीछे की पॉलिटिकल पार्टीज, उनके पीछे की आइडियोलॉजीज, उसके पीछे किन का कंट्रीब्यूशन था, किस किस तरह से कंट्रीब्यूशन था, हमारे देश की अलग अलग जगहों से, उन सबको हम देखेंगे। किन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन था, किन किन लोगों ने अपनी जान गंवाई, किन किन लोगों ने सब कुछ त्याग दिया कि आज हम ये सब्जेक्ट पढ़ पाए, वो सब हम देखेंगे। नाउ यू विल से सर ये थोड़ी सिलेबस होता है, आप ये बताइए ना कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। लेकिन अगर आप लोग इस पेज की बात को समझ गए ना, तो आप लोग मुझसे सवाल पूछेंगे ही नहीं। All right, let's proceed further. Let me quickly now try to wind up this video because I also have to go for dinner. And to be honest, this video is delayed. ठीक है, मैं I will be honest, ये वीडियो थोड़ा डिले होने वाला है। और अगर ये वीडियो डिले नहीं होता तो इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें भी थी जो मैं आप लोगों को नहीं बता पाता। हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है। तो एनीवेज, लेट्स प्रोसीड नाउ। ये दो ही किताबें हैं जो आप लोगों को पढ़नी है, स्पेक्ट्रम और इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिया। सर एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है क्या? डू वी डोंट हैव टू स्टडी एनसीईआरटी? नो, नॉट रिक्वायर्ड। Believe me guys, not required. I have personally read those NCERTs 4 to 5 times. It's not required. Spectrum is very important for prelims. It is important for mains. Prelims में बहुत important है, mains में important है। India struggle for independence by बिपिन चंद्रा। एक्चुअली बिपिन चंद्रा ने ही पुराने समय में एनसीईआरटी लिखी थी। ही वॉज द इंडिविजुअल हु रोट दी ओल्ड एनसीईआरटी ऑल्सो। सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस if I am writing two different books, it is very difficult that I will have a very different line of thought. कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो रहेंगी। So in other sense, if you have read this book, you have in any ways read the old NCERT also. So this book, this is not relevant for your prelims. It is very relevant for your mains. कुछ ऐसी दिखती हैं ये दो किताबें अगर आप लोग Amazon और Flipkart पे देखेंगे। Now why I have shared this picture? Sir, there are 3 different books of Spectrum showing up. Sir, there are 4 different books of Bipin Chandra showing up on the bookstore or on the Flipkart or Amazon. Sir, कौन सी खरीदनी है? फोटो दिख गई है। These are the latest books. Now you guys know what to purchase. If you don't have money, आपके पास पैसा नहीं है, मुझे ईमेल कर देना, मैं इन बुक के पीडीएफ आपको भेज दूंगा। ऑल राइट, बस मुझे जेल मत भेजना। एनीवेज आई ऑल्सो रीड फ्रॉम दोज पीडीएफ्स एनीवेज, ठीक है। जेल वेल तो क्या ही बात बोलें, अभी तो हम लोग बहुत लोगों को देखने वाले हैं जो जेल जाएंगे। कई लोग को लगता होगा जेल जाना बुरी बात है, तब तो फिर महात्मा गांधी भी बुरे इंसान थे। एनीवेज, हाउ टू इफेक्टिवली यूज दिस वीडियो सीरीज, व्हाट शुड बी द अप्रोच टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसको समझो। whatever video I upload, understand the story, understand the chronology, understand the concepts. सर नहीं समझ में आया, वीडियो देखने के बाद भी नहीं समझ में आया, if that is the case, watch it again. If that is again the case, watch it again. फिर भी नहीं समझ में आया, दूसरों के वीडियो में चले, और भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं बच्चे। मे बी माई एंड यू, वी बोथ आर नॉट ऑन द सेम पेज और सिंक नहीं मैच हो रहा है, उस केस में फिर आप लोगों को ये यूट्यूब चैनल छोड़ देना चाहिए, कहीं और जाके पढ़ लो। बट इफ you guys are able to relate to me, if you guys are able to understand what I am saying, if that is the case, I think re-watch the video.
Until unless you understand what I am trying to say, clarity ले लो. अब ये बात तो खत्म हो गई. Parallelly, we come to step number 2. Start reading Bipin Chandra. All right. Now I know it very, very well. Students will say, sir, you are teaching about Portuguese. In Bipin Chandra, they are teaching about 1857 revolt. Sir, क्या पढ़ा रहे हो? Understand this. Do not try to parallelly match the chapters between my videos and Bipin Chandra. इफ यू वॉन्ट टू बी फिट इन योर लाइफ, अगर आप लोगों को अपनी लाइफ में फिट होना है तो आप लोगों को बेकार खाना खाना छोड़ना पड़ेगा, अच्छा खाना खाना छोड़ना पड़ेगा, ऑयली फूड, शुगरी फूड, बाजार के आइटम छोड़ने पड़ेंगे और एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. मेरे वीडियो देखना मतलब बेकार रोड का खाना खाना छोड़ना है, लेकिन सिर्फ रोड का खाना खाना छोड़ने से आप फिट नहीं होगे, आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी. अब आप बोलो कि एक्सरसाइज और खाना खाना छोड़ना, उसके बीच में, दोनों के बीच में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन, दैट इज नॉट पॉसिबल. बोथ ऑफ देम आर लिटिल बिट डिफरेंट थिंग्स. माय वीडियोस विल गो इन डिफरेंट डायरेक्शन, बिपिन चंद्रा विल गो इन डिफरेंट डायरेक्शन. ऑब्वियसली बिपिन चंद्रा एक अलग इंसान है, अभिजीत सिंह अरोरा इज अ डिफरेंट इंडिविजुअल. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू इज, आप इस किताब को पढ़ना शुरू कर दें आज से, मेरे वीडियो को देखना शुरू कर दें आज से. समरी समझते जाएं, क्रोनोलॉजी समझते जाएं. अब ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाएं कि दोनों सेम क्या बता रहे हैं, अलग क्या बता रहे हैं. जब ये कहानी खत्म होगी तब आप लोगों को यह पता चलेगा कि हम दोनों एक ही डेस्टिनेशन के जर्नी के इंसान थे, हम दोनों की एक ही जर्नी थी. जब आप लोगों की ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी ना, उसके बाद आप लोग स्पेक्ट्रम शुरू करेंगे. वंस यू गाइज हैव फिनिश्ड दिस वीडियो सीरीज and once you guys have finished Bipin Chandra, only and only then you guys will study spectrum. Believe me guys, it is not an easy book, it's a difficult book. मैंने खुद पढ़ा था अपने समय में, I found it difficult. But if you have followed the above 2 steps, you will enjoy it. And if I talk from the examinations point of view also, it is obviously the most important book. बट मैं आप लोगों को कैलकुलस, इंटीग्रेशन अभी नहीं पढ़ा सकता हूं. पहले मुझे आप लोगों के बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे. आप लोग क्लास फर्स्ट से क्लास 12th में जंप नहीं कर सकते हो. इस स्टेप को फॉलो करोगे, मजे में रहोगे. नहीं फॉलो करोगे, किसी दूसरे चैनल पे भी जाओगे, वो भी यही बताएगा. तो डोंट वेस्ट योर टाइम, डू एज डायरेक्टेड, और एल्स इफ यू आर रियली ब्रिलियंट, फॉलो योर ओन स्ट्रेटेजी. सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है. सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. एंड अ टीचर कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट योरसेल्फ. मैंने आपके लिए दरवाजा खोल दिया है, आपको मालूम है अब कि कहाँ आना है, लेकिन इस दरवाजे के अंदर आप लोगों को खुद ही घुसना पड़ेगा. सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू.